Hello students, welcome to unit number 4, chemical bonding and molecular structure, and our continued topic is the molecular orbital theory, and in this topic we studied about the energy level diagram for a molecular orbital. So we know that the molecular orbital diagram, right, for bonding in some homonuclear diatomic molecules. So in last lecture, I think so, we studied about the hydrogen molecule, then H2 plus 1, then H2 minus 1, same way He2, He2 plus, He2 plus 2, H2 minus 2. So various type of species that we have to study in our last sessions. Now we start with a Li2, means lithium 2. Okay. So first, before we start the topic about the bonding in some homonuclear diatomic molecules, we already know that the molecular diagram or the energy level of diagram for Li2 through N2 means from 6 electron to 14 electrons is like that, sigma 2s. Prior sigma 2s we have to completed a sigma 1s and sigma star 1s, then sigma 2s, sigma star 2s, this pi to px, pi to py, sigma to pz, pi star to px, pi star to py, because they are equal in energy, so we have to apply the Hund's rule at here, and sigma star to pz. But for in the case of O2 through Ne2 means more than 14 electrons, means if we enter into the 15th electron, so our energy level is changed, and now the only change that we have to observe here, the sigma to pz is prior and pi to px, pi to py is the higher energy level as compared to the sigma to pz. This is all due to the shielding effect of the sigma 1s and sigma 2s, or sigma star 1s and sigma star 2s on the outer phase electron of such a species. So pi star to px and pi star to py and sigma star to pz. ओके, तो ये हमने यहाँ तक हमने थोड़ा जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पे दिखाया है. अभी हम स्टार्ट करेंगे Li2 मॉलिक्यूल से. तो अब देखिए Li2 का मैं जो मॉलिक्यूल्स का जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको मालूम है कि Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मैं एक बार आपको यहाँ पे ये भी दिखाना चाहता हूँ कि देखिए 6 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रखेंगे. सिग्मा 1s2 में आ जाएंगे, सिग्मा स्टार 1s2 में आ जाएंगे, बाद में कहां पे आ जाएंगे? सिग्मा 2s2, यानी 2 और 2 और 2 6 हो गए. तो इस तरह से मुझे ये जो स्केल है वो पूरा देखना पड़ेगा. देखिए उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमें मालूम है कि द फॉर्मूला इज Nb माइनस Na/2. तो यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने हैं? 4, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, यानी 4 माइनस 2 अपॉन 2, यानी 2/2 यानी 1. यानी लिथियम और लिथियम के बीच में एक बॉन्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आपको समझ में आ रहा है? एक बॉन्ड है, और दूसरा वो देखिए आप यहाँ पे कि जो एक तो हमें बॉन्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डायमैग्नेटिक है या एंटी. देखिए दो सभी जगह पे मुझे पेयर में ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, right? So no unpaired electron seen in this molecule. So definitely it's a diamagnetic in nature. डायमैग्नेटिक यहाँ पे मुझे मिल रहा है. तो इस तरह से हम यहाँ पे कुछ लिथियम की बात कर रहे हैं. फिर से मैं समझा रहा हूं. Each lithium atom has 2 electrons in its inner shell and 1 it's in outer shell. So means 3 electrons. So there is a total of 6 electrons in the molecule, and these are arranged in molecular orbital in this manner. So the inner shell of filled sigma 1s and sigma star 1s molecular orbital does not contributing to the bonding in much the same way is in the case of helium He2. So they are essentially the same as the atomic orbitals from which they were formed, and are sometimes the people or the some teachers we write in this manner too. Kk sigma 2s2. This k is a orbital or k orbital of sigma 1 and same way kk. So kk sigma. So bond order of Li2 is 1, and it implies that Li2 molecule is stable in nature, and the molecules are found to exist in the vapor state. However, in the solid states is energetically more favorable for lithium to form a metallic structure. So there is no unpaired electrons, so the molecule is diamagnetic in nature. So this is all about the Li2.
अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपकी बुक में Li2 की ही बात की है, आगे की कोई बात नहीं की है, लेकिन मैं आपको पहले से ही मेरा जो इंटेंशन है, मेरा जो गोल है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही है। तो हम यहाँ थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे भी सोच सकते हैं कि भाई मुझे Li2+1 दिखाना है, यानी मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5, एक निकल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमने यहाँ पे दिखाया था यहाँ तो बिल्कुल सही है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, सिग्मा में से ही निकलेगा, क्योंकि लास्ट में तो यहीं से ही फिल हुआ था। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी 3 - 2/2 यानी 1/2 यानी 0.5 आ गया है। और वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। So due to presence of this unpaired electron, so definitely it's a paramagnetic in nature। तो मुझे यहाँ पे पैरामैग्नेटिक का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे पैरामैग्नेटिक, अभी Li2+2 में यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, बिल्कुल 4 हो गए हैं, दोनों में से एक निकल जाएगा। तो सिग्मा 1s2 हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s2 ही हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल He2 जैसी प्रोसेस हो गई। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर मुझे क्या मिलेगा, 2 - 2/2 यानी 0, यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है, Li2+2 एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। देखिए ये मैंने जैसे इस तरह से भी समझा सकता हूं, Li2-1 यानी मुझे 7 इलेक्ट्रॉन उसमें लगाने पड़ेंगे। तो मैं कैसे लगाऊंगा, देखिए सिग्मा 1s2 तो मुझे मालूम है, सिग्मा स्टार 1s2 भी मुझे मालूम है, सिग्मा 2s2 तक तो हमने 6 लगाए थे, 7वां भी जो मिला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो कहां पे चला जाएगा, सिग्मा स्टार 2s1 में चला जाएगा। यानी इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर हम जैसे ढूंढेंगे तो 2 और 2 4, यानी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 हो गए हैं /2, यानी इसका भी 0.5 है और ये भी पैरामैग्नेटिक है। मैं थोड़ा उसको शॉर्टकट में लिखता हूं, पूरा स्पेलिंग नहीं लिखता हूं पैरामैग्नेटिक, आप समझ जाना कि ये पैरामैग्नेटिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस मॉलिक्यूल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे भी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर उसका है। देखिए मैं अभी कहानी में ट्विस्ट कहां पे आ जाएगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट कहां पे आ रहा है कि मैं यहाँ पे Li2-2 की भी बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं, देखिए आप Li2-2 की मैं बात कर रहा हूं। सो Li2-2 में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिग्मा स्टार 1s2, ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। सिग्मा 2s2, अभी यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s2 हो गया है। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, देखिए यहाँ 2 और 2 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी कितने हैं, 4 है, तो यानी 0 है, यानी Li2-2 का एग्जिस्टेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो Li2-2 की भी बात हो गई। या देखिए मैंने क्या किया, एक स्टेप +1+2 इस तरह से -1 -2 की भी बात की। तो भी आप देखिए मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि Li2 है, Li2 उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1। फिर मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं Li2+1, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0.5। समझ में आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे भी Li2-1 का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0.5 है। ये Li2+2 में दिखा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेम वे Li2-2 भी पॉसिबल नहीं है। अभी क्वेश्चंस कहाँ पे पूछे जा रहे हैं, देखिए कि भाई ये तीनों है, हमें मालूम है, ये बिल्कुल हमें मालूम है, लेकिन ये दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी। मैंने लास्ट में आपको पूछा था, मैंने जो ये क्वेश्चंस मैंने बोला था कि आप एक समझिए, मैंने वो H2+1 और H2-1 का प्रश्न डाला हुआ था। बिल्कुल इसका इजी आंसर है, H2+1 में जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना वो स्टेबल होता है। आपको समझ में आ गया। देखिए Li2+1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है और यहाँ पे 2 है। यहाँ पे क्या है Li2-1 में, यहाँ पे कितने हो गए हैं, देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 बढ़ रहे हैं। जितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो ये भी आपको क्वेश्चंस है, उस बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझा रहा हूं। अब एक बार देखिए,
कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा अपना समझ नहीं पा रहा है, तो मैं उसको अपनी ढंग से मैं समझाना चाहता हूँ। Li2 का मतलब क्या है, इसमें 6 प्रोटॉन्स है। अब देखिए Li2 का मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या है 5 है। यहाँ पे कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है 7 है, बिल्कुल सही है। 6 का 5 के ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा ही होगा कंपेयर टू 7। ये मैंने शॉर्टकट में आपको समझाया, लेकिन टेक्निकली मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं कुछ इस तरह से समझाना चाहूंगा कि भाई Li2 प्लस और Li2 माइनस उनकी आप स्थिति देखिए, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स से ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में चले जा रहे की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आ गया आपको? फाइन। अभी मैं नेक्स्ट आपको यहाँ पे हमारी बुक में यहाँ पे दिया नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि मुझे Be2 की बात करनी है। मुझे मालूम है Be2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। तो 8 किस तरह से रहेंगे, सिग्मा 1s2 से, सिग्मा स्टार 1s2 से, सिग्मा 2s2 से, सिग्मा स्टार 2s2 से, 2 और 2 4 और 2 6 और 8। तो इसका बॉन्डिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा 0, यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रहा है? Be2 एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है Be2 प्लस 1, Be2 प्लस 2, इस तरह से आप देखिए Be2 माइनस 1 और Be2 माइनस 2, ये पॉसिबल है। कई बार बच्चे को क्या होता है कि मेरी बुक में Be2 दिया ही नहीं है, यहाँ पे लिखा ही नहीं है, यानी ये मोलिक्यूली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेटली Be2 नहीं हो रहा, लेकिन Be2 प्लस में एक यानी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर मुझे मालूम है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 0.5 यानी हाफ हो जाएगा। Be2 प्लस 2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर मुझे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। समझ में आ रहा है? Be2 माइनस 1 की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप देखना पड़ेगा कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है। तो आप अपनी तरह से ये जो मैं यहाँ पे बॉक्स कर रहा हूं, आप अपनी तरह से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, उसका बॉन्ड ऑर्डर ढूंढिए, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखिए कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, और बाद में हम कंपेयर भी करेंगे कि भाई उसमें स्टेबिलिटी कहाँ पे किस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्लियर? ओके। Be2 के बाद हम यहाँ पे लेना चाहते हैं, ये तो हमारा 4 नंबर का आ गया। 5 नंबर का मेरे पास क्या था Be2, यानी बोरोन की बात कर रहे हैं। तो बोरोन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10। आपकी टेक्स्ट बुक में जो मैं यहाँ पे Be2 की बात कर रहा हूं, वो Be2 की आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है तो दिया नहीं है, राइट? तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि Be2 का जो 10 इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे है, तो मैं किस तरह से समझा सकता हूं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये तो 2 और 2 4 और 2 6 और 8 तो यहाँ पे हो गए। अभी मुझे यहाँ पे आगे चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे पाई पे इलेक्ट्रॉन आएगा, पाई 2px आएगा, बाद में पाई 2py। मुझे पहले देखिए 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 हो गए। मैं क्या करूं, यहाँ पे 2 लिख दूं? नहीं, यहाँ पे आपको एक ही लिखना है और यहाँ पे भी आपको एक ही लिखना है, क्योंकि बिकॉज दे आर इक्वल इन एनर्जी लेवल, राइट? तो होर्न्स रूल में क्या था, अनपेयर्ड रहने की उसकी जो टेंडेंसी है, तो उसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस अप्लाई करने की वजह से हम यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, आप समझिए। आप फिर से देखिए, मैं आपको अपनी तरह से भी समझा। देखिए, इसकी और इसकी इफेक्ट तो निकल जाएगी, यानी ये बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड इसकी भी इफेक्ट निकल जाएगी। आपको समझ में आ रहा है? फिर क्या होगा, ये बॉन्ड बना पाएंगे? यस, क्योंकि ये बॉन्डिंग में अभी है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, तो इसमें बॉन्ड क्या होगा 2 माइनस 0 हो जाए। देखिए फिर से मैं इसका BO दिखाना चाहता हूं। BO में 2 और 2 4 और 2 6, और उसमें कितने उसका एंटी इफेक्ट 4 है बाय 2, यानी 1 है बॉन्ड एंगल, मींस बॉन्ड ऑर्डर 1 है। समझ में आ रहा है? और ये जो बॉन्ड बना है बिटवीन बोरोन एंड बोरोन, तो कहीं बच्चे को इस तरह से भी यहाँ पे होता है कि सर जी बोरोन और बोरोन के बीच में देखिए किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के, यानी ये कई साल पहले AI की या AIPMT की एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस डाला हुआ था कि इन B2 which type of bonds it's present, right? तो
सभी बच्चे ने ये ढूंढा 1 है, और उसने ये भी आंसर दिया कि सर जी उसमें एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड होता है ना, तो सभी टीचर क्या बोलते हैं वो सिग्मा होता है। नहीं, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो पाई का होता है, और पाई वो थोड़ा वीक होता है, यानी B2 को मैं थोड़ी भी एनर्जी दूंगा तो उसका बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। फिर मेरा जो अभी दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है B2 का, कि भाई सर जी ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। आप देखिए सभी में तो कहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, नहीं ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी सेम है। तो यानी पे वो अनपेयर्ड रहने की वजह से वो क्या हो जा रहा है, उसको पैरामैग्नेटिक में दिखाना पड़ेगा। ये तो ब्यूटी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की, यही तो समझना है हमें कि B2 में किस तरह से है और इसका नेचर क्या हो रहा है। तो मैं आपको क्या करूंगा, B2 का समझाऊंगा, फिर मैं आपको ये थोड़ा अपनी तरह से होमवर्क में दूंगा। आपको B2-1 भी समझना पड़ेगा, आपको B2-2 भी समझना पड़ेगा, आपको B2 भी समझना पड़ेगा, आपको B2+1 भी समझना पड़ेगा, आपको B2+2 भी समझना पड़ेगा। आपको समझ में आया, मैं 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता हूं, 2 लूज करता हूं, मुझे मालूम है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे और बॉन्ड ऑर्डर 1 था। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 9, इसमें कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में होना चाहिए, और फिर आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आपको देखना पड़ेगा, और उसका मैग्नेटिक नेचर भी आप देखिए ये जो मैं बॉक्स कर रहा हूं वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मुझे तो मालूम ही है, आपको थोड़ी ही प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, और यहां से जो भी क्वेश्चंस निकले तो आप उसको अच्छी तरह से है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई किस तरह से मुझे यहाँ पे उसका आंसर देना पड़ेगा। आपकी बुक में B2 दिया ही नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस अपनी तरह से सोच रहा है कि भाई आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का कॉन्सेप्ट किस तरह से चल रहा है। फाइन, अभी मैं जो यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल्स की मैं जो बात कर रहा हूं नेक्स्ट है वो है C2। कौन सा मॉलिक्यूल है, C2 मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो है वो आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है कि C2 क्या है, समझ में आ रहा है। C2 का मतलब इसमें 6 2 12 इलेक्ट्रॉन्स उसकी टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मुझे लिखने पड़ेंगे। देखिए आप फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो मैं जो सिग्मा 2s2 में चला जाएगा, बाद में सिग्मा स्टार 2s2 में चला जाएगा। मुझे मालूम है यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैं किस तरह से लिख रहा हूं, पहले तो यहाँ पे एक चला जाएगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा, ये तो मैंने दिखा था। तो अभी यहाँ पे 2 और 2 हो जाएंगे, देखिए 2 4 6 8 10 12 12। क्लियर, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए ये बॉन्डिंग मोलेक्युलर, ये एंटी बॉन्डिंग, यानी नेट रिजल्ट 0, यहाँ पे भी नेट रिजल्ट 0 है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट बन रहा है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अभी बॉन्डिंग में पड़े हुए हैं, तो वो 2 बॉन्ड बना पाएंगे। आपको समझ में आ रहा है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हम लिखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, तो कि 2 4 6 8 माइनस 2 4 बाय 2 यानी 4/2 यानी 2। फिर दूसरा, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पैड में है, अनपैड नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक में है। फिर से मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, इन C2 द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू। So C2 having a 1 bond and diamagnetic in nature, C2 having a 2 bond and paramagnetic in nature, C2 having a 2 bond, out of this 2 bond, 1 is sigma and remaining is pi, 2 sigma है, एक 2 पाई है। आपको समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, दोनों पाई बॉन्ड बन रहे हैं, एक भी सिग्मा बॉन्ड C2 में दिखाई नहीं दे रहा है। मैं फिर से C2 की बात आपको फिर से मैं समझाना चाहता हूं। मुझे मालूम है कार्बन एटम एज अ 2+4 इलेक्ट्रॉन मींस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो C2 में 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर भी मैंने दिखा दिया कि भाई 2 है। सो द मॉलिक्यूल शुड बी स्टेबल एंड एग्जिस्ट एज अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, वो तो मैंने दिखाई दिया है, राइट। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, यहाँ पे नोट क्या है कि 2 बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स एंड बोथ पाई बॉन्ड्स, दोनों पाई बॉन्ड ही है because of the presence of 4 electrons in 2 pi molecular orbitals. So this is a different from usual double bonds that are
सामान्यतः क्या होता है, आप देखिए कि जिसमें डबल बॉन्ड देखेंगे ना तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पे आप देखिए C2 में क्या हो रहा है, तो कि C2 में सर जी दोनों पाई बॉन्ड ही है। आपको समझ में आ रहा है? फिर से मैं आपको समझाना रहा, देखिए कई बार मैंने तो एक बार एक जो आपकी रेफरेंस बुक जिसमें मैं आपको क्या एक बालाजी पब्लिकेशंस की भी एक बुक है, उसके VK जायसवाल की बुक है, उसने एडवांस में क्वेश्चन ये इस तरह से डाला हुआ था कि भाई देखिए मेरे पास ग्रेफाइट है, आपने पढ़ा होगा ना, ग्रेफाइट के बारे में आपने पढ़ा होगा, राइट। दूसरा मेरे पास क्या है, ग्रेफाइट के बाद मेरे पास है डायमंड है। आपको मालूम है नहीं, ये दोनों एलोट्रोपीज है, राइट, ये दोनों एलोट्रोपीज है, यानी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कार्बन से बना हुआ है। मुझे मालूम है कि यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी इसमें जो बॉन्ड है वो सिग्मा है, इसमें भी बॉन्ड क्या है, सिग्मा है। आप समझिए, फिर से मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड बन रहे हैं वो ऑलवेज सिग्मा इन नेचर ही होते हैं। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल डबल बॉन्ड्स। मैंने आपको अभी भी बताया हुआ था कि कार्बन है, उसका जो मैक्रोमोलेक्यूल होता है वो ग्रेफाइट और डायमंड में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, बट ये जो स्टेबल कौन सा है, ये C2 स्टेबल है या डायमंड स्टेबल है या ग्रेफाइट है, तो क्या भाई सर जी ये डायमंड ही है, क्योंकि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन दूसरे 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए, बाद में ये आएगा और लास्ट में ये आएगा। समझ में आ रहा है? तो डायमंड और ग्रेफाइट है ना, वो C2 से ज्यादा फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन C2 है वो लेस स्टेबल है कंपेयर टू द डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो क्लियर हो रहा है मैं कहां से आपको बात किस तरह से मैं किस घुमाव से आपके साथ समझाना चाहता हूं। देखिए बाद में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपके पास जो C2 है, तो आपको होमवर्क क्या करना है, C2-1 का करना है, C2-2 का करना है, C2+2 का करना है। मुझे मालूम है यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 बॉन्ड मुझे मिले हैं और दोनों पाई बॉन्ड है। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, 13 में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको करना पड़ेगा। ये थोड़ा होमवर्क है, आप करिए। फिर आपको स्टेबिलिटी की भी बात करनी पड़ेगी कि भाई सर जी बॉन्ड ऑर्डर से स्टेबिलिटी की क्या बात है, बॉन्ड लेंथ का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, बिल्कुल अच्छी तरह से आप कॉन्सेप्ट को समझिए और कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही आप कुछ मूवमेंट करिए। मैंने आपको यही समझाया हुआ है, फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि Li2 से N2 की जो मेरी जर्नी अभी मैंने आज बताई, अभी मेरी चल रही है। तो मैंने पहला σ2s सिग्मा स्टार, देन पाई टू px पाई, बाद में सिग्मा में चला जाएगा, फिर यहां पे चला जाएगा। ये इसका ऑर्डर है, आप समझिए। फिर से मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो अभी मैंने 12 तक तो मैंने आपको बात की थी। अभी कार्बन के बाद कौन सा नंबर आएगा, नाइट्रोजन का नंबर आएगा। तो ये नाइट्रोजन का नंबर है वो हम किस तरह से समझा सकते हैं, तो वो हम देखना चाहते हैं। देखिए अभी जो मैं आपके साथ बात करूंगा वो कहां से मैं बात करूंगा, देखिए आप। तो अभी जो मेरी बात है वो N2 से चल रही है। कहां से चल रही है, N2 में मुझे मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स है N2 में। नाइट्रोजन एटम हैविंग 2 + 5 = 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका जो मुझे मालूम है उसका जो arrangement in molecular orbitals which can be written is like that, σ1s2 σ*1s2, then σ2s2 में चला जाएगा, then σ*2s2 में चला जाएगा, बाद में π2px2 होगा, बाद में π2py2 होगा और लास्ट में σ2pz2 में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए 2 4 6 8 10 12 14 हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए ये जो इनर वाले हैं, जो इनर होते हैं, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अपनी जो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस में। समझ में आ रहा है? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, देखिए N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर मैं देखना चाहता हूं, तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 4 6 8 10, यानी 10 बॉन्डिंग में है, और 2 और 2 4 कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में /2 है, यानी 6/2 है, यानी 3 है, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N है।
समझ में आ रहा है? इसका बॉन्ड ऑर्डर एन, और दूसरा वो डाई मैग्नेटिक है क्योंकि सभी पेयरिंग इलेक्ट्रॉन में है। ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन आपको ये क्वेश्चंस यहां से भी तो शुरू हो रहा है, क्वेश्चंस यहां से शुरू होगा कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। देखिए ये N2 वाला है ना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल यहां से बिल्कुल कहानी में मैं ट्विस्ट डालूंगा, इतना बढ़िया ट्विस्ट होगा कि आप भी समझने के लिए। देखिए 14 इज द बॉर्डर है, मैंने आपको पहले भी बोला था। जैसे 15 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा और ये पीछे चला जाएगा 15 से, 14 में नहीं। 15 इलेक्ट्रॉन्स से ये कुछ इस तरह से शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, वो हमें सबको मालूम है। देखिए अभी मेरा तो पहला प्राइमरी क्वेश्चन है कि इसमें तीनों पाई बॉन्ड है, या 2 सिग्मा 1 पाई है, या तीनों सिग्मा है, या 2 पाई 1 सिग्मा है, क्या है आप समझिए। मैंने आपको दिखाया, ये तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं, ये भी नहीं पर है। लेकिन इसने 2 पाई बनाया है, देखिए, और इसने 1 सिग्मा बनाया है, यानी एक में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। आपको समझ में आ गया? 1 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड यहां पे बन रहे हैं। आपको बिल्कुल क्लियर? अभी जो मेरा क्वेश्चन है वो मैं इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं। मैं अभी N2 की बात कर रहा हूं, फिर मैं N2+1 में चला जाऊंगा और N2+2 में चला जाऊंगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 14, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था? 3 है। समझ में आ रहा है? 14 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और मुझे मालूम है कि वो डाईमैग्नेटिक इन नेचर है। लेकिन N2+ में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 13। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, क्योंकि यहां से 1 इलेक्ट्रॉन मुझे कम करना पड़ेगा। किसमें कम करना पड़ेगा? सिग्मा 2pz 1 हो जाएगा, और वो पैरामैग्नेटिक में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? N2+ में यानी दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स में चले गए हैं। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2, और वो क्या होता है? डाईमैग्नेटिक होता है। लेकिन अभी जो गेम शुरू होगी ना, वो यहां से शुरू होने वाली है, N2-1 से शुरू हो जाएगी। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15। फिर यहां पे कितने हैं? 16। अभी यहां पे जो कहानी में ट्विस्ट होगा, क्योंकि 15 में ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझा रहा हूं, क्या दिखा रहा हूं? N2 वाला जो पॉइंट है ना, वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग पॉइंट है। वो एक वर्च पे खड़ा होता है, तो वर्ष पे मुझे देखना पड़ेगा। आपको मालूम है N2 वाला है ना, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ना, वो बहुत ज्यादा है। इसमें हम कह रहे हैं कि 945 किलो जूल पर मोल हम जैसे एनर्जी देंगे ना, तो ही वो कुछ यहां से बॉन्ड। इसलिए आपको मालूम है N2 है ना, वो इनर्ट गैस की तरह बिहेव कर रहा है। हमारे एटमॉस्फेयर में भी N2 है, लेकिन वो इनर्ट गैस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। सो इट्स रिक्वायर्ड अ मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपने पढ़ा होगा कि जैसे थंडरिंग रेन होती है, वो गाज वीज से जो बारिश होती है, जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है वहां पे, तो ऊपर क्या होगा? N2 का वो जो इलेक्ट्रिसिटी मिलने की वजह से उसके ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएंगे, राइट, और वो फ्री रेडिकल में चला जाएगा। सेम वे O2 भी फ्री रेडिकल में चला जाएगा, क्योंकि O2 में डबल बॉन्ड है। तो फिर वो दोनों फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ जुड़ के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। फर्दर ऑक्सीडेशन नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी होता है, और वो पानी के साथ घुल के वो HNO3 में चला जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन भी बोलते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन एसिड रेन का नहीं था, मेरा क्वेश्चन ही था क्योंकि यहां पे बिल्कुल जैसे हम यहां पे रह रहे हैं, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चल रहा है, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो N ट्रिपल बॉन्ड N को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इट्स रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। 945 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। आपको मालूम है ना, नाइट्रोजन गैस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई टायर ट्यूब में नाइट्रोजन गैस के फीलिंग होता है, क्योंकि वो इनर्ट है, ऑक्सीजन की तरह नहीं है, वो इनर्ट है, वो रबर के साथ प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। फिर आपने बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को लंबे समय तक रखने के लिए भी हम नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं। आपने वो बालाजी वेफर्स या वो वेफर्स का जो पैकेट है, तो आपने देखा होगा कि उसको नाइट्रोजन फिलिंग में रखा जाता है कई बार, क्योंकि इससे वेफर क्रिस्पी रहती है, कड़क रहती है। अगर ऑक्सीजन हम यूज करेंगे तो वो थोड़ा ह्यूमिडिटी होने की वजह से वेफर या कोई ऐसे फूड कंटेंट के साथ जुड़ के वो थोड़ा गीला हो जाएगा और वो थोड़ी नरम हो जाएगी। तो उसका जो स्वाद है, उसकी जो टेस्ट है, वो हमें इस तरह से कुरकुरे होने चाहिए, इस तरह से नहीं होती है। तो ये N2 के बारे में मैंने आज आपके साथ बात की थी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से ही हम O2 के साथ हम बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम O2 से अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।